Hello students, welcome back to your science class. Okay, so in the last class we spoke about the plastics and their types and why are they so widely used. Okay, their applications also and their properties. Okay, just because they have those properties, that is why they are used in so many to make so many materials. Okay, that is why plastic is used as a raw material. So okay, now we're going to talk about there are some hazards of using plastic. Okay, now what are those hazards? First of all, what does the hazard mean? Hazard means some kind of danger, basically. Okay, for something that can cause some harm. Okay, as we know that everything has its own good qualities and bad qualities. Everything has its own harm and danger. Everything has its own positive and negative aspects. Okay, just like we spoke about synthetic fibers, though they are very useful, okay, in making various different kind of materials, but at the same time we noted that the synthetic fibers can melt very easily when they come in contact with the heat, okay, or fire for that matter. Similarly, plastics they cause hazard to the environment, prakriti, or nature. Why? Because in class 7th you must have heard something about biodegradable. Okay, what does biodegradable thing mean? We'll break this down into parts. Okay, bio and degradable. Degradable means something that can be easily destroyed or broken down. Okay, broken down into simple parts, into simple pieces. Okay, into pieces. Okay, how? By the action of certain chemicals present in nature, okay, in the soil. Just like you have learned about composting. Okay, like we use our garbage to prepare the compost, to prepare manure, right? Now what does a garbage mostly consist of? It consists of, like, the kitchen waste can consist of vegetable peels and fruit peels. Okay, all those items which will start to rot. Okay, if you just keep your garbage, if you don't throw your garbage every day and you keep your garbage for 2 to 3 days, okay, and especially if you keep it open, then you will see that it will start attracting mosquitoes and flies on it. At the same time, you will notice that it is emitting a very foul odor. Okay, बहुत ही गंदी smell. Foul means gandhi smell, foul smell or odor. Why is it so? Because this happens as a result of rotting. When the rotting begins, it starts to smell. Okay, it starts emitting smell. Now how does rotting actually happen? What does rotting means? Rotting means सड़ना. ठीक है, कोई भी चीज़ आपने बाहर ऐसी रखी होगी वो अपने आप सड़नी शुरू हो जाएगी. ठीक है, अगर आप कोई चीज़ को ऐसी, अगर आप सॉइल में अगर आप बेरी करोगे, ये सॉइल है, सॉइल के अंदर आपने ऐसे एक पिट बनाई खोद के. ठीक है, खोद लिया आपने, इसे खोद के ऐसे एक खड्डा टाइप बनाया है, उसको पिट बोलते हैं. ठीक है, इसके अंदर यू हैव जस्ट एडेड ऑल द गार्बेज. What garbage? Like vegetable peels and all that, your kitchen waste. Okay, after some time you will notice that it turns into manure. Okay, manure or something like, मतलब soil का ही वो एक part बन जाता है. Okay, and this manure can be used by plants, okay, which grow in the soil to obtain nutrition. Okay, this manure will serve as a source of carbohydrates. It will serve as a source, okay, food source of carbohydrate, fat, protein, जितने भी आपके nutrients हैं,
ओके, ऑल दीज आर न्यूट्रिएंट्स, राइट. फैट हो गया, अच्छा फैट लिख लिया मैंने ऑलरेडी. प्रोटीन हो गया, देन योर मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन. यस. Okay, so this manner can be used by the plants to gain their nutrition, right? So what actually happens when you see that the garbage is buried in soil? Buried is spelled as B-U-R-I-E-D, but it is pronounced as buried and not buried. Okay, so what converts or what converts or changes the vegetable peels in the kitchen waste into soil? It is by the action of certain microbes or microorganisms. Microorganisms are organisms, छोटे छोटे जो भी कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, ऐसे कई सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इन सबको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. ऑर्गेनिज्म इज बेसिकली एनी लिविंग बीइंग. इवन प्लांट इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है. तो माइक्रो मीन्स स्मॉल, विच वी कैन नॉट सी फ्रॉम आवर नेकेड आइज, जो हम ऐसे बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं, ठीक है. बिना उसके मतलब हमें उसे नेकेड आई से हम उसको नहीं देख सकते हैं. दैट इज़ वेरी स्मॉल, माइक्रो, वेरी वेरी स्मॉल. ओके, इट्स माइक्रो. मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया होता है बट हम उसको देख नहीं सकते. जर्म्स, जितने भी जर्म्स होते हैं, फंजाई हो गए, ठीक है. जैसे कि आपका बैक्टीरिया, बहुत सारे नाइट्रोबैक्टर के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में. ओके, नाइट्रोबैक्टर्स हो गए, या फिर राइजोबियम के बारे में पढ़ा है, राइट. दीज आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड दे आर फाउंड इन द सॉइल. दे आर फाउंड इन द सॉइल. दिस इज एसोसिएटेड विद लेग्यूम्स, ठीक है. जो जैसे पल्सेस वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे दाल वगैरह के प्लांट्स होते हैं, उनके साथ इट्स एसोसिएटेड. सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट देयर आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी फंजाई हैं, जो हम लोग ऐसे लिविंग थिंग्स जिनको हम एक नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. और सबसे ज़्यादा सॉइल के अंदर ही रहते हैं, ठीक है. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऐसे कुछ केमिकल्स बनाते हैं. इनके बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स बनते हैं, ठीक है. जैसे केमिकल्स बनाते हैं जो आपके फूड मटेरियल्स वगैरह जो होते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है. एवन जो एक लीफ है, ठीक है, अगर लीफ एक सूख के नीचे गिर गई, अगर ये ग्रीन से येलो हो गई, सूख गई है, सूख के वो पेड़ से गिर गई है, ठीक है. आफ्टर सम टाइम यू विल नॉट फाइंड दैट लीफ ऑन द सॉइल एनी मोर, क्योंकि वो डिकम्पोज हो गई है. डिकम्पोज क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है. ऑर्गेनिक मैटर में यही सब आता है. जैसे आपका किचन वेस्ट हो गया, ठीक है, और आपका जो वेजिटेबल पील्स, फ्रूट्स, ये सब किचन वेस्ट है. देन योर लीव्स, ठीक है. एनी एनिमल पार्ट्स. अब जैसे कोई बंदा मर जाता है तो उसको भी कई बार बेरी करते हैं या फिर उसकी बॉडी को जलाते हैं, ठीक है. तो इससे क्या है कि उसके जो रिमेन्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स के रिमेन्स जो होते हैं, वो अपने आप ही सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं. क्योंकि जो उसके सॉइल के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो उसको भी मतलब काट के खा लेते हैं, ठीक है. कैसे काटते हैं? बाय रिलीजिंग RELEASING, ठीक है. रिलीजिंग सर्टेन डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है. डाइजेस्टिव जूसेस के अलावा ऐसे सर्टेन केमिकल्स, ओके, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है. in order to obtain, if it's so as to obtain nutrition from it. Okay, that is called decomposition. Okay, so the question is कि प्लास्टिक्स का जो हैज़ार्ड है वो ये है, प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है. हमने पहले बात करते थे बायोडिग्रेडेबल की मतलब क्या होता है. डिग्रेडेबल मतलब डिवाइडिंग इनटू सिंपलर पार्ट्स. बायो मीन्स लिविंग,
ठीक है। तो ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जो कि लिविंग है, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल बताया वेजिटेबल पील्स वगैरह, ठीक है, वो सारी जो कि नॉर्मल सॉइल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है, वो उसको अपने डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट करके या रिलीज़ करके उसको छोटे सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसमें से न्यूट्रिशन उनको मिलता है। ठीक है। तो बेसिकली कैन वी से दैट बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है, लाइक किचन वेस्ट, दिस दैट, ठीक है, कैन बी ब्रोकन डाउन into simpler substances, ठीक है, simpler particles कह लो या substances कह लो, substances, ठीक है, by soil organisms, okay, by soil organisms, ठीक है, and thus can be decomposed, okay, and get mixed with the soil too, and get mixed with the soil, ठीक है, forming what? Manure. Yes, so this is the definition of biodegradable substances. जो plastics होते हैं they are non biodegradable, means they cannot be broken down into simpler substances, ठीक है, by the action of these microorganisms. Now what's the reason behind it? Because प्लास्टिक एक ऐसा सब्सटेंस है, पहली बात तो सिंथेटिक है, नेचुरल नहीं है, ठीक है। जो किचन वेस्ट जितना भी होता है सारा नेचुरल होता है, जितने भी वेजिटेबल पील्स वगैरह वगैरह वो सब हैं, वो सारे नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, राइट। प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक मटीरियल, ठीक है, उसमें ऐसे कुछ केमिकल्स से बनता है, जैसे पॉलीथीन आपको मैंने बताया, जिसका रिपीटिंग यूनिट क्या होता है? इथीन, राइट। तो इथीन एक तरह का ऐसा केमिकल है विच इज़ नॉट नेचुरल, वो एक सिंथेटिक केमिकल है, ठीक है। और इसीलिए जो हमारी बॉडीज़ में और कई सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडीज़ में ऐसे एंजाइम्स या फिर ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस नहीं हैं जो कि प्लास्टिक को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है, प्लास्टिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके ब्रेक डाउन करके उसको डाइजेस्ट कर सके, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारे अंदर ऐसे केमिकल्स नहीं है और उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ऐसे केमिकल्स नहीं है। दैट इज़ वाई वी से दैट plastics are non biodegradable, ठीक है। रेस्ट आई विल बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो।